مرد عورتیں بچے سب موجود وہ ہوا جو کسی نے خواب و خیال میں بھی سوچ. کہتے ہیں کہ شادی زندگی کا سب سے بڑا اسٹیپ ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہمارا پارٹنر ہم سے نکاح میں آ جائے اور ہم اس سے شادی کر لیں. تو اس شادی میں ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایک اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں. پر شادی کرنی کیسے ہے یہ بھی ہمیں ڈیپینڈ کرتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک ایسی دردناک اسٹوری لے کر آئے ہیں جو کہ ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے نکاح ایک سنت طریقے سے کرنا چاہیے. اگر ہم حد سے زیادہ پیسہ لگاتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے, ہمارا ہی الٹا اور نقصان ہوتا ہے. ہم جب پیسہ لگاتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے. کچھ ماں باپ حد سے زیادہ لون لے کر 25, 30 یا 10 لاکھ روپیہ لون لے کے حد سے زیادہ بڑا بڑا کھانا کر کے کر رہے ہیں. پر ہمیں اپنے اسلام کو پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے اصل میں نکاح ہوا تھا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ تعالی وسلم نے بی بی فاطمہ کا نکاح کیا تھا. یہ تو چھوڑیے, ہماری جو بی بی حوا اور آدم علیہ السلام تھے ان کا نکاح کیسے ہوا تھا, یہ ساری چیزیں ہمیں جاننی چاہیے کہ سنت طریقہ کیسے ہے. اس سے زیادہ پیسہ برباد کرنا از ناٹ اے گڈ چوائس. آپ زیادہ پیسہ برباد کرتے ہو, پہلی چیز تو آپ خود کا نقصان بھی کرتے ہو, دوسری طرف آپ کو اس کے ریورٹ میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. آپ جیسے جیسے لوگوں کو بلا رہے ہو اس حساب سے آپ کھانا ضرور کر سکتے ہو, لیکن جو یہ آتش بازیاں, ٹینٹس, حد سے زیادہ بہت ساری چیزیں جو آپ انکلوڈ کرتے ہو, ناچ گانے کے لیے لوگ ناچنے والی کو بھی بلا لیتے ہیں کہ ہاں ڈانسرس کو ہمیں چاہیے, ہم اتنا اتنا پیسہ دیں گے. اور سب کو بھائی آج کے زمانے میں پیسہ سب کو زیادہ ہی چاہیے آف کورس, یا ہم کوئی اور بھی چیزیں اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. تو یہ ساری آتش بازیاں جو اسپیشلی جو ہوتی ہیں گھوڑا گاڑی ہاتھی اینڈ وٹ ایور, یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو اس میں حد سے زیادہ کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے تو وہی ماں باپ جانتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں. صرف میں ان ماں باپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ جن لوگوں نے شادیاں کری ہیں وہ لوگ, آپ ہی لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کری ہیں, جنہوں نے اپنا منہ پیٹ کاٹ کے اتنا پیسہ لگایا ہے. پر کیا ہو اگر آپ کی شادی ہو رہی ہو اور اس طریقے میں اسی بہت ہی اچھے ماحول میں آپ کی پوری زندگی بدل جائے. آج ایسے ہی ایک واقعہ لے کر آئی ہوں میں جس میں دلہن دلہا کی شادی ہو رہی تھی اور اس میں ایک ایسا آفت مچ گئی کہ اللہ کی پناہ ہو وہاں پہ. بس چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا اس شادی میں جو کہ اچھے بھلے خوشی کا ماحول ماتم میں بدل گیا. اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے, اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے اور اپنے حفظ و اعمال میں رکھے اور سنت طریقوں کو فالو کرنے میں ہماری توفیق عطا فرمائے. بس میں یہی سب سے امید رکھتی ہوں اور خود سے بھی یہی رکھتی ہوں, کوشش بھی یہی کرتی ہوں کہ اس طریقے سے ہماری ساری چیزیں ہوں. تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا دردناک منظر سامنے آیا جس سے کہ ہمیں بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. So let's begin. خدا دیتا ہے جنہیں عیش انہیں غم بھی ہوتے ہیں, جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. ایک ایسا دردناک حادثہ, ایک ایسا دردناک ایکسیڈنٹ عراق کے شمالی شہر ہمدان میں ہوا جو بغداد سے 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے. خوشیاں ماتم میں بدل گئی, گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا. اس حادثے کو سن کر آپ کو افسوس بھی ہوگا اور ایک بہت بڑا سبق, ایک بہت بڑا درس اس حادثے سے, اس ایکسیڈنٹ سے ہم سب کو سیکھنے کو ملنے والا ہے. اس حادثے کو سن کر آپ زندگی میں بہت زیادہ احتیاط کرنے لگ جائیں گے. جہاں یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا عراق میں, وہ علاقہ ایک عیسائی آبادی والا علاقہ ہے. وہاں ایک شادی ہو رہی تھی, ایک عالی شان شادی ہو رہی تھی. سینکڑوں لوگ اس شادی میں شریک تھے. بتایا جا رہا ہے کہ اس شادی میں 1000 سے 1100 لوگ شریک تھے. سب کچھ اچھا چل رہا تھا, ناچ گانا ڈانس سب کچھ ہو رہا تھا. ہال کی لائٹنگ اور خوشنما کرٹن جگمگا رہا تھا. آتش بازی ہو رہی تھی, لوگ ڈیکوریشن اور کھانے پینے کا لطف لے رہے تھے. سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے. ہال کی لائٹنگ کی, کھانے کی, ڈیکوریشن کی سب تعریف کر رہے تھے. سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. پھر وہ ہوا جو کسی نے خواب و خیال میں بھی سوچا نہیں تھا. جب دولہا دلہن ڈانس کر رہے تھے تو آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آتش بازی ہو رہی تھی.
इसी आतिशबाजी में कुछ चिंगारियां ऊपर लगे कर्टन तक जा पहुंची और उस कर्टन में आग लग गई। फिर जहां से फूल बरस रहे थे वहां से आग के गोले बरसने लगे। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, शादी हॉल में जैसे कयामत आ गई, हॉल में भगदड़ मच गई। बाराती अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हॉल में आग और धुएं की वजह से लोगों को घुटन होने लगी। इसी बीच लाइट चली गई। लोगों को घबराहट में बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। लोग भागना चाह रहे थे लेकिन अंधेरा, आग, धुआं इतना था कि लोगों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सोचिए जरा कयामत का क्या वो मंजर होगा, क्योंकि उस शादी में मर्द, औरतें, बच्चे सब मौजूद थे। किसको बचाए? देखिए, एक थोड़ी सी बेएहतियाती, एक छोटी सी गलती कितने लोगों पर भारी पड़ जाती है। ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। खबरों की अगर माने तो इस दर्दनाक हादसे में 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 113 लोगों की लगभग जान चली गई, जलकर मर गए और 150 लोग बुरी तरह से झुलस गए या जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती है। हालांकि दूल्हा दुल्हन किसी तरह किचन के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन क्या फायदा, सब अपने चले गए। शौकत, हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा जमाना चला गया। मेरे भाइयों, हमें इससे ये सबक मिलता है कि शादियों में फजूल खर्ची और फजूल सी रस्में, ये आतिशबाजी और ये तरह तरह की जो रस्में निभाई जाती है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रस्में इस्लाम के खिलाफ भी है और ऐसे भी खतरनाक हो सकती है। निकाह सादगी के साथ होनी चाहिए, इसमें बरकत भी होती है, अल्लाह की मदद भी होती है। इस हादसे में कहा जा रहा है कि दूल्हा दुल्हन के माँ बाप के साथ 12 सगे रिश्तेदार जलकर खाक हो गए और दुल्हन के 8 सगे रिश्तेदार जलकर खाक हो गए। अब उनकी हालत तो ऐसी हो चुकी है कि अब तो खुशी का गम है, न गम की खुशी मुझे बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। इन्हें सदियों न भूलेगा जमाना, यहां जो हादसा कल हो गया। मेरे भाइयों, इस हादसे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका इस हादसे के बारे में क्या कहना है और हमारे शादियों में क्या रस्में नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट को भी हजारों लोग पढ़ते हैं। हो सकता है कि आपके किसी कमेंट करने से और किसी अच्छे कमेंट करने से किसी की जिंदगी बदल जाए। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मिफ्ताही परफ्यूम्स के जानिब से ये 3 नए इत्र आपके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। पहला है संदल ऊद, दूसरा है सिदरा और तीसरा है एहसास। संदल ऊद ये खालिस संदल की लकड़ी से तैयार किया गया है और सिदरा, इस इत्र में आपको ऊद, अंबर, वर्द, ताइफी और स्मोकी नोट्स महसूस होंगे। एहसास इत्र तो ऐसा है कि लगाने पर ही आपको एहसास होगा कि वाह क्या फ्लेवर है, माशाअल्लाह, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ये तीनों इत्र एक साथ मंगवा सकते हैं। इन तीनों इत्र की कीमत सिर्फ 1500 रुपए है। आप हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर जाकर भी खरीद सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
So have you seen this मंजर? क्या आपने ये मंजर देखा कि क्या फायदा रहा इतनी आतिशबाजियां करने का, जिसमें जब कर्टेन में, जब ऊपर वाले टेंट में आग लगी तो वहां पर फूल बरसने की जगह आग बरसने लगी। मतलब आप तो सिर्फ वीडियो में देख रहे हो, लेकिन जहाँ पे ये हो रहा होगा ना, जो जो समय, जो लम्हा था, वो लम्हा खुशी का था और अचानक से वो मातम में और गम में बदल गया। कोई मतलब नहीं रहा इतनी आतिशबाजियों का, कोई मतलब नहीं रहा इतने दिखावे का। जो लोग देखते हैं ना कि हाँ इतना इन्वेस्टमेंट, ओ माय गॉड बहुत अमीर है, इतनी अच्छी शादी करी थी इन्होंने, नो, दिस इज नॉट द वे टू गेट मैरी विद एनीवन एल्स, और स्पेशली टू फादर एंड मदर द गार्जियन, कि मैं उनको ये अल्लाह ताला हिदायत दे, मैं ये बात उनको बताना चाहती हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। यू शुड ऑलवेज फॉलो द सुन्नत तरीका। बाय द वे आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप उस शादी के, उस जोड़े के नाम पे आप थोड़ा सा पैसा दे दो, जिससे कि लोगों उनको उनकी जिंदगी की अल्लाह ताला के नाम पे दे दो, जिससे कि ये हो अल्लाह ताला उनको अपनी रहमो करम में रखे। दिस इज द बेस्ट वे। अगर मैं अपने माइंड से भी सोचूं ना, तो एक यही सेंस निकलता है हमारी माइंड से कि हमें क्या सही तरीके से करना चाहिए। इतना पैसा आपने अपनी शादी में तो बर्बाद कर दिया, पर उन गरीबों का क्या? और ऑफकोर्स अल्लाह ऐसे मंजर जरूर दिखाता है कि हद से ज्यादा, मतलब ओके, जितने लोग थे आप उतना खाना कर दो, उनके पेट के अकॉर्डिंग कितना वो खाते हैं, और रिजक अल्लाह ताला ही भेजता है, आप नहीं बनवाते हैं। भले ही जरिए आप होते हैं, माँ बाप होते हैं, पैसा आप देते हैं, पर वो सब कुछ कराने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होता है। और अगर आप ये काम कर भी रहे हो, लोगों के अकॉर्डिंग आप खाना बनवाओ, सुन्नत तरीका अपनाओ, तो जैसा कि हमें इन्होंने बोला कि कोई कमेंट करे, तो मैं भी यही चाहूंगी कोई कमेंट करे और बताए कि भाई सुन्नत तरीका क्या है शादी करने का, क्योंकि निकाह करना हमारे ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। ये हमारा आधा ईमान है जो हम आगे बढ़ाते हैं। अब उस आधे ईमान में हम और भी स्टुपिडिटीज अंदर ऑब्जर्व कर लें, उन सब चीज़ों को अपना लें, सो दैट इज नॉट अ गुड चॉइस टू फॉलो द सुन्ना, राइट। तो हम आधा ईमान तो पाने जा रहे हैं, पर जो सुन्नत तरीका है उसे तो हमने अपनाया ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, और थियोरेटिकली हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए कि क्यों ये सब बातें, भाई कोई रीजन होगा ना इनके पीछे। ऐसे ही तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ बयान नहीं करी, ऐसे ही तो अल्लाह ताला ने सब कुछ नहीं बताया इन कुरान एंड हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने हमें ऐसे ही कुछ नहीं बताया है। देयर इज अ ह्यूज रीजन बिहाइंड ऑल दैट स्टेटमेंट्स, वट एवर अल्लाह told us in Quran Majid and Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam told us in Hadith. All right, सारी चीज़ों का फॉलो करिए और इन सारे मंजरों से बचिए जो कि आपकी ज़िंदगी में एक कहर बनकर आते हैं और कुछ नहीं मिलने वाला होता है आपको इन सारी चीज़ों में। आई होप आपको ये वीडियो देख के थोड़ी सी भी हिदायत मिली हो अल्लाह की तरफ से, और हो सके तो आप उस जोड़े के नाम पे खाना बांटिए, जिससे कि जब लोगों की जब गरीबी खत्म होगी ना, जितना पैसा आप उस शादी में, आतिशबाजी में, पटाखे दगाने में, डांसिंग में लगाए हैं, उतना पैसा अगर आप किसी को खिलाने में, उसका अनाज अल्लाह की तरफ, जरिया अल्लाह है, लेकिन अगर आप जरिया बन जाते हो उस चीज़ को खिलाने का, तो हो सकता है आपको सवाब मिल जाए, और आपकी आखिरत तो बनेगी ही बनेगी, और ज़िंदगी भी आपकी बेपनाह खूबसूरत होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ये सब दिल की बातें हैं। आप तो लास्ट तक के वीडियो जब ही देखोगे, जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान से समझोगे, तब आपको समझ में ज़रूर आएगा। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अपने हिफ्ज़ अमाल में रखे, और हम सब के ऊपर अपना रहम ही रखे, रहम करम उसका हमारे साथ रहे, मैं यही दुआ करती हूँ। और आप भी मेरे साथ आमीन कहिए, क्योंकि हम सबको चाहिए कि हमें अल्लाह की बताई हुई बेस्ट स्टेटमेंट्स को फॉलो करना चाहिए, एंड हम यही उम्मीद रखते हैं कि हम तो सारी चीज़ों को फॉलो करें वट एवर अल्लाह हैज़ टोल्ड अस इन कुरान मजीद, इंस्टेड ऑफ ऑल दैट आतिशबाजी। ऑलराइट, आतिशबाजियाँ करना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, और ये सब करने से कोई इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप कोई चीज़ कर रहे हो, सब खा के चले जाएंगे, देख के चले जाएंगे, नुकसान आपका, सुन्नत आपने नहीं निभाई, सुन्नत आपने फॉलो नहीं करी, और अल्लाह ताला की नज़र में आप गलत हुए। ये सारी 3-4 चीज़ें आपके ऊपर आई, और सब तो खा के चले गए पटाखे और डांसिंग देख के, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, एंड इसमें आपका भी नुकसान नहीं होगा, आपके भी पैसे बिल्कुल खर्चा नहीं होंगे, आपको भी अच्छे ज़्यादा मुँह पेट काट के अपने लड़की लड़का, अपने बेटे बच्चों का निकाह नहीं करना पड़ेगा। सुन्नत तरीके से करिए। और इस्लामिक शादी तो मेरा मतलब, मैं जब देखती हूँ ना, इतनी खूबसूरत शादी होती है, जो इतनी सिंपल होती है, उसमें हमें कुछ नहीं लगाना होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं देना होता है। तो ये सारी सुन्नत तरीके आपको समझने चाहिए, और प्लीज़ कमेंट करिए यहाँ पे कि किस तरीके से सुन्नत शादी करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को भी समझ में आए। ऐसी ऑथेंटिक चीज़ को कमेंट करिए, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि हाँ कैसे करना चाहिए। इससे आप अपना खुद ही रिजल्ट देख लीजिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अल्लाह हर जगह नहीं दिखाता है, ये मत कहिएगा ऐसे तो बहुत शादियाँ हो रही हैं, अल्लाह क्यों नहीं दिखाता ना। अल्लाह जल्दी किसी के चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता, और जल्दी अल्लाह ताला किसी भी चीज़ का कोई भी
रिजल्ट नहीं देता है, कोई मंदिर नहीं दिखाता है। जब तक कि अल्लाह वो चाहता नहीं है कि हमें यहाँ दिखाना है, तब तक कि अल्लाह नहीं दिखाता। कोई ना कोई रीजन हर चीज के पीछे होता है। रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ ऑल दैट सच पर्सन, जो कि उनकी फैमिली में थे, दुल्हन की और दूल्हा की जितनी भी चीजें थी, जो भी लोगों की मौतें हुई, अल्लाह ने सबकी मौत इस वक्त कहाँ पे मुकर्रर करी है, डिपेंड ये भी करता है। पर अल्लाह को मंदिर भी दिखाना होता है कि हाँ, इस तरीके से नहीं किया जाता है। अल्लाह आपको बोल के नहीं आके बताएगा, और जिसको जितना उसको बोलना था ना, उसने कुरान में कह दिया है, बस आपको वहां से फॉलो करना है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, और दुआ किया करिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अल्लाह हमारी सारी दुआएं इंशाअल्लाह ताला जी के हुक्म से ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह हाफिज़।